Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Good morning, class. So we are back in 13th session of the course, and to begin with, we'll have some more words. This is word family boat. Okay, Akshat, can you read the first few lines? Oat, oak, oat, 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 bore, bore, post, boat, pole, lope, coach, course, post, pole. Good. Shashank. Rock, float, foam, glow, Yes, yes. gloat, goat, groan, Groan. groan, hood, Hoard. hood, horse, hoax, load, leaf, Mm-mm. loaf, loaf, loam, loan, Good. Reshan. loath, loath, Load. This is load, loath. This is load. loan, moom, Moan. moon, mot, Poach. Yes. road, Yes. Okay, just a minute. Karthik. roam, roar, roast, soak, soap, soar, toad, toast, throat, broad. What is this? Broad. Broad. Yes. So it is broad. Okay. Open your mouth. Broad. Broad. Okay. That is the only word in this family with that kind of a sound. Okay. Akriti. Last line. Exceptions. Oasis, boa, broet, Croat. croat. Coalesce, Coalesce. coalesce, coagulate. Okay. So you see this line has exceptions. That is why they are separated with the line. And you see here when you read these lines, those words which you know, you read normally. Those which are new words, in that you people fumble and experiment with the sound. Okay. That is not necessary, because the sound is similar, we have put them together. Okay. So with whatever sound you are reading boat, coal, similar sound, with similar sound you should read cloak. Okay. Coach, course, and so on. Even if you do not know the word course, you read it the way you have read board, boast, okay, which you knew. Okay. This family has a large number of words which perhaps you don't know, and as you grow old, you will go on knowing more words, and when you need, you can always consult a dictionary to find out what is the meaning. Okay. And other than ordinary words, we have been giving you lists of verbs in between. Okay. So 2 lists of verbs we have already done. This is the third list. Akshat, read the first column, and others, if you don't know the meaning of any of the verbs, ask, because these are very simple common verbs and you must know the meaning of it. Look, watch, fight, fall, die, dream, wake, rise, arise, like. All are simple? Good. Shashank? This one? eat, meet, make, throw, catch, keep, bring, smell, touch, teach. Okay. And as you make the other forms, you will notice that there are patterns, okay, in which other words are made.
For example, the fifth one, you put ing, okay, and if there is a consonant at the end with a short vowel before that, then that consonant is quite often doubled. You know that. Sit, sitting, cut, cutting, short vowel. In the case of long vowel, that is not doubled. Okay, meet, meeting, keep, keeping. Okay. Now one of the very important lessons, most important lessons, is the verb be. In the first quarter, we studied the verb do, and I told you that that is one of the most important verbs, and verb be is another very important verb. Akshat, read this. Be careful. मतलब सावधान रहो. good, Be careful in the train. ट्रेन में सावधान रहो. good, Be a nice boy and eat your meal. अच्छे बच्चे बनकर अपना खाना खाओ. अच्छे बच्चे की तरह अपना खाना खा लो. ठीक है, good. Next, Be bold and fight for the right. बहादुर बनो और सही के लिए लड़ाई करो. सही के लिए लड़ो, सच्चाई के लिए लड़ो, बिल्कुल सही. That is another possible meaning, but the meaning that he has taken is perhaps the right meaning in this case. So यहाँ पर right का मतलब अधिकार नहीं लेकर जो है right का मतलब सही लिया जा रहा है, which is perhaps the idea. Okay. Next, Kindly be available for the meeting. मीटिंग के लिए कृपया हाजिर रहिए या फ्री रहिए. ठीक है. ओके, शशांक. अब उसका नेगेटिव, इसी टाइप का नेगेटिव सेंटेंसेस. Do not be afraid. डरो नहीं. बिल्कुल सही. Do not be a coward. कावर्ड, Coward. कायर मत बनो. Liar. Do not be angry. Please. गुस्सा ना करो कृपया. गुस्सा नहीं करना प्लीज. गुस्सा ना करो. Please do not be away. कृपया जाइए नहीं. दूर मत रहना, दूर मत रहना. ठीक है. तो ये सारे सेंटेंसेस में देखो कि बी अपने मेन फॉर्म, असली फॉर्म बी के तौर पे आ रहा है, और ये उस टाइप के सेंटेंसेस है जिसमें कोई रिक्वेस्ट, कोई ऑर्डर दिया जा रहा है. और बाकी टाइप के सेंटेंसेस में जब बी आता है, बी का मतलब होना. ठीक है. तो हूँ, हैं, है, हो, ये सेंस में भी आ सकता है. थे, था, होगा, इस सेंस में भी आ सकता है. तो इसमें जो है प्रेजेंट में आर, एम, इज़ 3 फॉर्म, पास्ट में वाज, वेयर 2 फॉर्म, और फ्यूचर में विल बी 1 फॉर्म आएगा. ओके. सो यू सी, फॉर टिपिकल वर्ब्स यू हैव 2 फॉर्म्स फॉर प्रेजेंट, गो, गोज, eat, eats, do, does. Here you have 3 forms, are, am, is. For I, there is a special form, am. Okay. And in past, for all other verbs, you have a single form, went, sat, right? Here you have 2 forms, was and were. And in this case, you see, I connects with was, just like he or she. Okay. In the case of other verbs, typically I takes the same kind of verb which is taken by we, they, and so on. But here I is a proper singular. Okay. I was. Okay. So in present, be will be used as are, am, is. In past, it will be used as was, were, and in future, it will be used as will be. Okay. So let us see some sentences of all forms. Reshan, read this. I am a student. मतलब मैं एक स्टूडेंट हूँ. मैं एक विद्यार्थी हूँ. ठीक. आगे. I am not a doctor. मैं डॉक्टर नहीं हूँ. बिल्कुल मैं सही. I late. Am I late? Am I late? क्या मैं लेट हूँ? हाँ. क्या मैं लेट हूँ? हाँ, बिल्कुल सही. क्या मैं देर से आया हूँ? ठीक है. Why I am I? Why am I here? Why am I? मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं यहाँ क्यों हूँ? ठीक है. So you see, with I, am, just like the 4 kinds of sentences that we studied earlier, positive, negative, interrogative, and question with a query. Okay, proper question.
So the same structure roughly which go with the verb do. So in the negative question, negative sentence, you put a not here. Okay. I do not go. I am not a doctor. Okay. Similarly, in the question, do I eat cake? Do I eat cakes? Okay. Similarly, am I late? So I am changes place. Okay. Why do I go? मैं क्यों जाता हूँ? Why am I here? मैं यहाँ क्यों हूँ? देखो, बी वर्ब में कोई एक्शन नहीं है. ओके. बी वर्ब जो है वो घटना नहीं बताता है, सिचुएशन बताता है. ओके. इट शोज ए पोजीशन, स्टेटस. ओके. कार्तिक. वी आर हैप्पी, हम सब खुश हैं. ठीक. वी आर नॉट पोएट्स, हम पोएट, हम लोग कभी नहीं हैं. हम लोग कभी नहीं हैं. आर वी फ्री, क्या हम आज़ाद हैं. आज़ाद हैं. वेयर आर वी, हम लोग कहाँ पे हैं. हम लोग कहाँ हैं. ठीक है. फाइन. आकृति. You are honest. यू आर Honest. ऑनेस्ट. You are honest. क्या तुम दयालु हो? तुम दयालु दयालु नहीं. हो. क्या तुम सच्चे हो? क्या तुम ईमानदार हो? नहीं, तुम ईमानदार हो. यू आर ऑनेस्ट. साफ बताया जा रहा है, तुम ईमानदार हो. यू आर ऑनेस्ट. You are not a lion. तुम एक शेर नहीं हो. तुम शेर नहीं हो. हिंदी में बोलने के लिए तुम एक शेर नहीं हो बोलने की जरूरत नहीं है. तुम शेर नहीं हो. Are you the engineer? क्या तुम वो इंजीनियर हो? बिल्कुल सही. When are you free? कब तुम कब नहीं. ओके. तुम कब आज़ाद हो गए या तुम कब खाली रहोगे या तुम कब खाली हो. ठीक है. ओके. यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट शी सेड आर यू द इंजीनियर, क्या तुम वो इंजीनियर हो. उसने ये बताने की कोशिश की कि जिस इंजीनियर की बात हो रही है उसके बारे में लोगों को पता से पता है, द इंजीनियर. ओके. अक्षत. You are helpless. तुम किसी के मददगार नहीं हो. उल्टा, मददगार. तुम्हें मदद की ज़रूरत है जो नहीं मिल रहा है. तुम बेसहारा हो. तुम बेसहारा हो. You are not criminals. तुम लोग मुजरिम नहीं. तुम लोग मुजरिम नहीं हो, अपराधी नहीं हो. Are you boys fine? क्या तुम लड़कों सही हो, ठीक ठाक. ठीक ठाक हो. क्या तुम लड़के लोग सब ठीक ठाक हो. Why are you sad? तुम दुखी क्यों हो. बिल्कुल सही. शशांक. ही इज़ अ ग्रेट मैन, वो एक महान आदमी है. बिल्कुल सही. शी इज़ नॉट ए नर्स, वो एक नर्स नहीं. वो नर्स नहीं है, काफ़ी होगा. इज़ द वेदर नाइस, क्या मौसम बढ़िया है. बिल्कुल सही. व्हेन इज़ इट वार्म, वो गर्म कब था. वो गर्म कब है वो गर्म कब. या गर्म कब होता है. जैसे कि वो पूछता है तुम्हारा अमेरिकन दोस्त कि क्या तुम्हारे यहाँ मौसम अभी सही है. तुम बोलते हाँ ठीक ठाक है. तो बोले कि मैंने सुना है कि गर्मी हिंदुस्तान में बहुत गर्मी पड़ती है. व्हेन इज़ इट वार्म, गर्म कब होता है. ठीक है. तुम बोलोगे मई में होता है, जून में होता है. ठीक है. रेशन. मोहन एंड मैरी आर हेयर. मैरी नहीं. मेरी आर हेयर. मोहन और मैरी यहाँ पे हैं. बिल्कुल सही. देयर आर नॉट फ्रेंड्स. दे आर नॉट फ्रेंड्स. वो फ्रेंड नहीं है. वो दोस्त नहीं है. ठीक. आर दिस बॉयज रिलायबल. रिलायबल. क्या ये लड़के भरोसेमंद हैं. हाउ आर दे. वे लोग कैसे हैं. बिल्कुल सही. कार्तिक. नेक्स्ट वी गो टू पास्ट. ओके. आई वॉज इल, मैं बीमार हूँ. बीमार था. मैं आवाज. आई आई वाज वॉज नॉट एट होम, मैं घर में नहीं हूँ. था. नहीं था. वॉज आई गुइल्टी, गिल्टी. वाज आई गिल्टी. क्या मैं कसूरवार था. हाउ वॉज आई रॉन्ग, मैं कैसे गलत हूँ.
मैं कैसे गलत था, मतलब कि मैंने क्या गलत किया था, आइडिया ये है। ठीक है, आगे पढ़ो। वी वर प्रेजेंट, हम लोग हाजिर थे, हाजिर थे। वी वर नॉट स्टूडेंट्स, हम दोस्त नहीं हैं। हाँ, हम लोग विद्यार्थी नहीं थे, विद्यार्थी नहीं। हम लोग उपस्थित थे, हम लोग विद्यार्थी नहीं थे। वर वी रॉबर्स, क्या वो लोग चोर हैं? उई, क्या हम लोग डाकू थे? वाई वर वी कैप्टिव, हम लोग कैदी क्यों थे? हम लोगों ने कोई कसूर नहीं किया था ना, तो हम लोग कैदी क्यों थे? आकृति। You were a child then. तुम तब एक बच्चे थे. तुम उस समय बच्चे थे। You were not well. तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं थी. बिल्कुल सही, तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं थी, तुम ठीक ठाक नहीं थे। Were you tired? क्या तुम थके हुए हो? थे, क्या तुम थके हुए थे? Where were you the captain? Where were you the captain? Where पे जोर है, पूछ रहे हो कहाँ? कहाँ के कैप्टन थे? तुम कहाँ पर कैप्टन थे? वाह. ठीक है, बड़े ढींग हाँका करते हो कि मैं कैप्टन रहा करता था, कहाँ पर? ठीक है, आगे पढ़ो। You were happy people. तुम लोग खुश लोग थे. तुम लोग खुश थे। तुम लोग खुश थे. You were not magicians. तुम लोग जादूगर नहीं थे. बिल्कुल। Were you hungry? क्या तुम भूखे हो? भूखे थे। भूखे थे. Why were you so noisy? क्यों तुम इतने हल्ला मचा क्यों रहे थे? तुम लोग हल्ला क्यों मचा रहे थे? कार्तिक। ही वॉज आर टीचर, ये हम लोग की टीचर थी। वो कैसे? वो कैसे? वे, ही वॉज आवर टीचर, वे हमारे शिक्षक थे। मिसेस रॉय वॉज गुस्सा नहीं थी। Was the aunt angry? क्या वो चींटी भूखी है? भूखी थी, क्या चींटी भूखी थी? Where was it then? तब वो कहाँ वो था कहाँ या तब वो कहाँ थी? ठीक है, गुड। आगे। They were servants. क्या? सवाल नहीं है ये। They were servants. वो लोग नौकर हैं। थे। वो लोग नौकर थे। They were not cute. क्वाइट। Quiet. वो लोग शांत नहीं थे, वे लोग शांत नहीं थे। Were they ill? क्या वो बीमार थे? गुड। When were they helpful? वो लोग कब मददगार थे? मददगार थे, वे लोग कब मददगार थे? ठीक है, शशांक। फ्यूचर। I will be a doctor. मैं एक डॉक्टर बनूंगा. मैं डॉक्टर बनूंगा। ओके, I will not be selfish. मैं खुदगर्ज नहीं होऊंगा. बिल्कुल सही, मैं खुदगर्ज नहीं होऊंगा। Will I be happy? क्या मैं खुश रहूंगा? बिल्कुल सही, Why will I be there? मैं वहाँ क्यों रहूंगा? बिल्कुल सही। आगे। We will be workers. हम कर्मचारी बनेंगे. हम कर्मचारी होंगे या हम कर्मचारी बनेंगे? We will not be sad. हम दुखी नहीं रहेंगे. हम दुखी नहीं रहेंगे, बिल्कुल सही। Will we be members? क्या हम क्या हम मेंबर बनेंगे, members? सदस्य बनेंगे, क्या हम सदस्य बनेंगे? How will we be free? हम हम लोग कैसे आज़ाद रहेंगे या हम लोग कैसे आज़ाद होंगे? बिल्कुल सही। अक्षत। You will be gentle. तुम सज्जन बनो. बिल्कुल सही, तुम सज्जन बनोगे, तुम सभ्य होगे। ठीक है, You will not be a slave. तुम दास नहीं बनो. हाँ, सज्जन बनने का मतलब दास नहीं होता है। हाँ, ठीक है, आगे। Will you be obedient? क्या तुम ईमानदार रहोगे? ओबिजेंट का मतलब ईमानदार नहीं, आज्ञाकारी। क्या तुम आज्ञाकारी बनोगे? Why will you be behind? तुम पीछे क्यों थे? क्यों रहोगे? रहोगे. तुम पीछे क्यों रहोगे? ओके, You will be teachers. तुम लोग टीचर बनोगे. हाँ, तुम लोग सही इंटरप्रेट किया है। यू का मतलब इंग्लिश में
तुम भी हो सकता है, तुम लोग भी हो सकता है, लेकिन आगे टीचर्स लिखा हुआ है इसलिए तुम लोग सही इंटरप्रेट किया है. गुड. You will not be cruel. तुम निर्दयी, निर्दयी नहीं बनोगे. बेरहम नहीं बनोगे. Will you be learned? Learned. Learned. क्या तुम पढ़े लिखे होगे? बिल्कुल सही. क्या तुम पढ़े लिखे होगे? क्या तुम सुशिक्षित होगे? How will you be powerful? तुम ताकतवर कैसे बनोगे? बिल्कुल सही. तुम ताकतवर कैसे बनोगे? शशांक. He will be sure. वो श्योर रहेगा. वो पक्का रहेगा. ठीक है, ठीक है. She will be the judge. वह न्यायाधीश बनेंगी. ये एक मतलब हो सकता है और दूसरा मतलब ये हो सकता है कि राय उनके हाथ में होगा. शी विल बी द जज. शी हाँ हाँ. द टीचर विल बी द जज ऑन व्हाट टू टीच यू. Will it be correct? क्या वो सही होगा? ठीक. How will it be useful? वो कैसे यूजफुल होगा? हाँ, काम का कैसे होगा, वो काम का कैसे होगा. नेक्स्ट. The boys will be noisy. वो लड़के काफ़ी चिल्ल शोर मचाने वाले होंगे. हाँ, शोर मचाते रहेंगे या ऐसा शोर मचाएंगे कुछ भी. देखो इसका ठीक ठीक हिंदी करना थोड़ा मुश्किल है. हाँ, हल्ले गुल्ले बाज हिंदी में नहीं इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, आगे. They will not be dangerous. वो खतरनाक नहीं होंगे. ठीक है. Will the people be violent? वायोलेंट. Violent. क्या वो लोग नहीं 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 विद्रोह. हाँ, हाँ. क्या वो हिंसक. हिंसक होंगे? क्या वे लोग हिंसक हो, क्या लोग हिंसक होंगे? When will they be calm? वो कब शांत होंगे? बिल्कुल ठीक है. इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश करने में अक्सर पक्का पक्का नहीं होता है, तो जो अंदाज होता है, जो आइडिया होता है, उसको ट्रांसलेट किया जाता है. वो भी इसलिए जिसे कि हमको समझ में आए कि तुमने ठीक समझा है. ओके. या अगर मुझे अंग्रेजी नहीं आती, तुमसे पूछते कि बबुआ इसका हिंदी ये क्या मतलब निकला, तब तुम हमको हिंदी में समझा देते हैं. ठीक है. ओके, गुड. कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? Sir, in that slide of be verbs, in the past form, yes, and that last one in the left column, where was it then? उस समय ये कहाँ था? हाँ, या then यहाँ पे फिर के सेंस पे नहीं बैठ सकता? उस सेंस में भी बैठ सकता है. जैसे कि तुमने बोला कि आपने बोला कबर्ड में ढूंढो, मेरी घड़ी नहीं थी, तो मैं पूछूंगा कि तो वो कहाँ थी. ये भी सेंस हो सकता है. कोई क्वेश्चन? यस मैडम. Was is the word for I. यस, ही के साथ भी. I also comes if I were there. Oh yes, that is very advanced. Yes, with wish, even with I or he, it will be were. Okay, if I were there, होना चाहिए था लॉजिक के मुताबिक if I was there, लेकिन wish के साथ were होता है. wish जब एक्सप्रेस करना होता है, if I were there. I wish I were a doctor. Sir, this I wear this thing. Is it only wish, or there is some sense of impossibility attached to that wish? Then also, I mean, if I were a prime minister, Yes, kind that of is very subtle. Yeah. Yeah, I wish, but that's sense it is, of impossibility. it is something impossible, but it would be very nice if it were so. That is the idea. Yes. Karthik, come here. And now some sentences we will make with in this structure with be. Okay. So other than be, no other verb you will use. Only be. Fine. Okay. I will give you a word. Chair. As verb, you will use only be, no other verb. Okay. सेंटेंस खत्म हुआ? ये और कुछ लिखना है? खत्म हुआ तो क्या करोगे? हाँ, तब ना लोगों को समझाओ कि खत्म हुआ सेंटेंस. ये सेंटेंस बनाया है ट्रेन विल बी लेट. कोई गड़बड़? द ट्रेन. क्या अब सही हुआ? नहीं.
ट्रेन का टी कैपिटल से स्मॉल करो। डस्टर कहाँ है? ट्रेन का टी स्मॉल हो जाएगा ना? हाँ ठीक है, ओके। इसको पास्ट बनाओ अब। अच्छा, द ट्रेन विल बी लेट क्या मतलब है? ट्रेन देर से आएगी या ट्रेन लेट होगी, हिंदी में हम लोग बोल डालते हैं, ठीक है। इसका पास्ट बनाओ। विल बी बदल के क्या करोगे? पास्ट करना है तुमको। पास्ट, ट्रेन लेट थी। ठीक है, उसके नीचे एक और लाइन खींचो, प्रेजेंट बनाओ इसका। गुड, द ट्रेन इज लेट। अब इसका नेगेटिव करो, ट्रेन लेट नहीं होगी। इस सबसे ऊपर वाले को नेगेटिव करो, इसी में कुछ जोड़ के करो, ठीक है। दो वर्ब अगल बगल फटाफट नहीं बैठाओगे, ठीक है। बी है वर्ब, ठीक है। द ट्रेन विल नॉट बी लेट, ट्रेन लेट नहीं होगी, ठीक है। लेकिन कल ट्रेन लेट थी, तो इस सेंटेंस को जो है रहने देते हैं, ठीक है। आज ट्रेन लेट नहीं है, ठीक है। तो उसका क्या करोगे प्रेजेंट के लिए? वो नॉट का क्या करोगे प्रेजेंट वाले में? फिर डज बोलोगे, डज नहीं चलेगा। ट्रेन लेट नहीं है, देखो तुम्हारे दोस्त बोल रहे हैं इज नॉट, द ट्रेन इज नॉट लेट, ठीक है। ठीक है, मिटा दो। हाँ अक्षत कम, बी यूज करोगे, दूसरा कोई वर्ब नहीं, ठीक है। सोशल, गुड। स्टडी नहीं चलेगा। ग्रेट, फर्स्ट क्लास, स्मार्ट। दे विल बी इन सोशल मीडिया, मतलब क्या निकला? सोशल मीडिया में होंगे, जैसे कि फेसबुक में होंगे, है ना। सामाजिक माध्यम में होंगे, ठीक है। इसका पास्ट करो। ठीक, they were प्लूरल है ना, ठीक है। they were in social media, ठीक है। ठीक है, अब जो है दे की जगह पे आई करो, तो ऊपर वाले सेंटेंस में क्या बदलेगा, नीचे वाले सेंटेंस में क्या बदलेगा? ऊपर वाला तो सही है। क्या कर रहे हो? तुमने प्रेजेंट कर दिया था, हाँ पास करो। आई वॉज इन सोशल मीडिया, ठीक है। आई की जगह पे शी करो। इस हालत में कौन सा बदलेगा, कैसे कैसे बदलेगा? सब यही रहेगा, बिल्कुल सही, ठीक है ना, सब यही रहेगा। अच्छा, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं कहना नहीं चाहता हूँ कि शी विल बी इन सोशल मीडिया, वो सोशल मीडिया में रहेगी, ऐसा नहीं बताना चाह रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वो सोशल मीडिया में रहेगी? गुड, ठीक है, गुड। विल शी बी इन सोशल मीडिया, ठीक है। शशांक, अब उल्टा करते हैं, लिखो हेयर। अब सेंटेंस बनाओगे जिसमें दूसरा कोई वर्ब आएगा, बी नहीं आएगा।
ओके, विदाउट एयर वी कैनॉट लिव, वी कांट लिव इसने लिखा है। ये बोलने के लिए सही है, लिखने के लिए कांट जो है ना इस तरह से नहीं लिखने को कहा जाता है, कैनॉट लिखा जाता है। और कैनॉट में कैन और नॉट अलग अलग नहीं बल्कि ऐसे ही साथ लिखा जाता है, ठीक है। कैनॉट लिखते वक्त विदाउट एयर वी कैनॉट लिव, बोलते वक्त बोल सकते हैं विदाउट एयर वी कांट लिव, ठीक है। ओके, थैंक यू शशांक। Okay, so we stop here. We saw 3 kinds of practice in today's tutorial session. One in which we practiced words with all kinds of sentences, whatever children wanted. In the third, we used the verb be. In the and apart from that, we used sentences in which we wanted be to be absent. Okay, because people use be quite often in the wrong places. So in our classes we typically conduct exercises with a lot of sentences being made in which we ask not to use be. Okay, we stop here. Thank you.